अब जा चले गए हैं। अब पूरा का पूरा दारोमदार जो है वो ध्रुव और इस पैर के ऊपर है और खूबसूरत शॉट, बेहतरीन शॉट। हालांकि फुल टॉस जरूर थी पर उसको अच्छी तरह से निभा दिया है। चलो हम अब जाते हैं नीचे सुप्रीत के पास। Welcome to the second match of the day here at the Chinnaswamy Stadium in Bengaluru. That is playing a gracious host to Karnataka Bulldozers versus Bengal Tigers. A pool of talent both ways indeed. I'm Supreet Bedi, and with me now we have the lead actresses of Vastru Prakara, which is going to hit the theatres very, very soon. So let's say hello to Parul Yadav and Aishani Shetty. Parul, first of all, you guys are here for supporting Karnataka Bulldozers. So are you ardent fans of cricket? Yeah, in fact, I love cricket. I'm a die-hard fan of cricket and especially the T20 format. That keeps you on your toe, it gets over fast and you get the result instantly. Are you a cricket buff? Definitely, both of us are. So it's amazing. The crowd is amazing, and Karnataka is playing really well. So it gives. So let's quickly talk about the format that CCL brings. See, well, CCL is a non-professional cricket league. But looking at this guy's play, it looks like a professional cricket league to me. Yeah, I mean, look at them, they're actors. They hardly get time to play cricket. The all things they can do in a day is just play gully cricket. And then you see the so right technique on the ground, playing so well. When they take the game so seriously, we as an audience enjoy watching it, you know. Yeah. Let's talk about Vastu Prakara now. Tell us a bit about what the film is. Well, Vastu Prakara is about 3 couples. It's me, Jagesh, Aishani, Rakshit, and Anant Nag and Sudharani. It's about the superstition about Vastu Prakara. There's nothing called Vastu Prakara, it's all in your head. Up to a certain limit, I think it's good. But if it's kind of ruining your daily chores, you know, you're worried about that, was it at the correct place, your dining table is it correct place, I think then if it bothers you a lot, then it's not right, I guess. I'm not in favor of Vastu. You're not. Do you think, Aishani, that the stadium is fine according to Vastu? I don't believe in Vastu, so I can't really tell. But the stadium looks amazing, and the players are doing a good job. So I don't believe in Vastu, but the stadium is definitely amazing. So basically, no superstition comes from you ladies at all? I'm an interior designer by profession. My clients will be very upset. A lot of my clients, they believe in Vastu Prakara. Of course, I have to respect their sentiments, and sometimes you have to go ahead with their sentiments. So it's not about if I wear an orange lipstick today, they might win. Yeah, I'm wearing an orange lipstick. I'm wearing an orange lipstick. Sorry, I'm going to stop there. With me now is the hero of the film as well. We have with us Rakshit Shetty, the actor. We're talking about Vastu Prakara. Are you superstitious? Yeah, I think so. This is 2 girls who are not. I have a guy here who is. So, tell me a bit about your superstition when you're playing. I'm told you're a cricket fan as well. I definitely watch cricket, but I don't play. I'm not good playing. Are you doing it? No, but I definitely watch it. And he's my favorite actor. His talent is observation here, isn't it? All right, here is wishing you very good luck. Back upstairs right now. We've had a wicket. Well, there's been a wicket fall here, 53 for 3. After 6 overs, they've got the 3rd wicket. Bengal Tigers, they're coming back in this game. It's been referred. No ball is not a problem. That's a beautiful action. No ball is not a problem at all. It's the business end of that wicket. Well, it's hit him in line. With that angle, I feel it's just drifting down the leg side a little bit. That angle that is created by the bowler. It's hit him in line, there's no doubt about that. But that angle, he's way forward, way ahead. He's about 3 feet ahead of the crease.
They're waiting for the third umpire to give them the confirmation. I guess he's talking with the on-field umpire, the third umpire. And it's been reversed. It's not out. And have a look at that roar in the crowd. Just remains 53 for 2 after 6. I can't do it. What? I could just do 53 for 2. अगर रिफर है तो आप इधर क्यों दिखा रहे हैं? 53 for 3 क्यों दिखा रहे हैं? क्यों? If it's referred, then coming back in 5, 4, 3, 2, no, but you don't 1. set it You ahead. commentary. 54 for 2 after 6 overs. The power play has been bowled here and have been joined by Devian in the commentary box. Atul Vasan has just gone out for a coffee break. बहुत रोचक मुकाबला, क्योंकि जिस तरीके से कर्नाटका बुलडोजर्स ने शुरुआत की थी, खासकर जो ओपनिंग पार्टनरशिप थी, उसके बाद अच्छी वापसी की है बंगाल टाइगर्स ने। 2 विकेट लिए थे बिना किसी रन के, यानी 37 पे पहला विकेट गिरा, 37 पे दूसरा विकेट भी गिरा, लेकिन उसके बाद यहां पे धीरे धीरे एक साझेदारी पनपती हुई। खासकर राहुल जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं, बहुत बहुत काबिले तारीफ। देवराज जिन्होंने कि अपने पहले ही ओवर में 1 विकेट दिलाया था अपनी टीम को दर्शन के रूप में, और एक अच्छा पहला ओवर था। फिर से साइड स्क्रीन के पीछे कुछ मूवमेंट, जिसकी वजह से एक बार फिर गेंद नहीं हो पाई। बिग ब्रदर फाउंडेशन डोनेट्स ₹1000 फॉर एवरी रन स्कोर्ड इन CCL 2015। आपको याद दिला दे कि XXX एनर्जी ड्रिंक CCL पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज के आज के पहले मुकाबले में 300 से अधिक रन बने थे। बेहतरीन शॉट, ये खूबसूरत शॉट देवयान, क्या बात है। राउड बिल्कुल खुश उस शॉट से। हाफ वॉली जरूर थी, पर उसको अच्छी तरह से खेल दिया मिड विकेट की तरफ। कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल। यहां पे एक रन लेना चाहते थे, थोड़ी सी जरूर तालमेल में कमी हुई थी। एक रोचक पोजीशनिंग ले रहे हैं यहां पे अमिताभ। अगर आप नोटिस करें अमोल, तो ना ज्यादा पीछे है ना ज्यादा आगे, बिल्कुल बीचों बीच। ये मुझे नहीं लगता कि ये अच्छी रणनीति है, क्योंकि अगर उस बैट्समैन का एज लगे तो इतनी जल्दी निकल जाएगी तो उनको मौका ही नहीं मिलेगा। और इस बार खेल दिया है बिल्कुल गैप में, थर्ड मैन और पॉइंट के बीच से होती हुई 4 रनों के लिए। पावर प्लेज खत्म हो चुके हैं, लेकिन फिर भी रन गति में कोई रुकावट नहीं आई है। लगभग 10 रन प्रति ओवर तक अभी भी चल रही है। और कर्नाटका बुलडोजर्स ये अगर मैच जीत जाएं तो आपको याद दिला दे सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। और वहीं बंगाल टाइगर्स के लिए आज करो या मरो की स्थिति है, जानते हुए दोनों टीम अच्छे जज्बे और जुनून के साथ इस मुकाबले को खेलती हुई फिलहाल। और अब तक की जितनी भी बल्लेबाजी देखी है अमोल, उससे यही पता चल रहा है जो हम पहले मैच में भी डिस्कस कर रहे थे कि हालांकि वीर मराठी के कई सारे विकेट शुरू में गिरे थे, लेकिन ये बहुत अच्छी सतह है बल्लेबाजी के लिए। हाँ बिल्कुल अच्छी सतह, हमेशा जानी जाती है ये बल्लेबाजों के लिए काफ़ी अच्छी सतह होती है।
100 Hearts initiative. Donate now at hridaya.com to save a life. बंगाल टाइगर्स जिनके की ओनर हैं बोनी कपूर और साथ साथ ब्रांड एम्बेसडर्स हैं पायल और शायंतिका। फिलहाल गेंदबाजी करते हुए देवराज, फिर से आक्रामक स्ट्रोक, लेकिन अब थोड़ा सा फील्ड फैला हुआ है तो आसानी से बाउंड्रीज मिलना उतना आसान नहीं होना चाहिए। हालांकि इस ओवर में 2 बाउंड्रीज लग चुके हैं। तो क्या बैटिंग कर रहे हैं यहाँ पर कर्नाटका बुलडोजर्स। ये एक और बहुत बेहतरीन प्लेसमेंट। इसी के साथ ओवर की समाप्ति 68 पे 2। माफ कीजिएगा, एक गेंद अभी भी बची हुई है, यानी 69 का स्कोर होगा और 2 विकेट गिरे होंगे और एक गेंद अभी भी बची होगी। बढ़िया शॉट, प्लेसमेंट काफी अच्छी थी वहां पर, आपने सही कहा। और इस बार भी प्लेसमेंट बेहतरीन, लाजवाब बैटिंग ध्रुव द्वारा। 73 पे 2, 7 ओवर की समाप्ति। बंगाल टाइगर्स की गेंदबाजी क्रम में किसी को आज नहीं बख्शा गया है। इंद्राशीष शायद सबसे अच्छे इंप्रेसिव गेंदबाज रहे हैं। 1 विकेट जरूर लिया था उन्होंने और 27 रन दिए 3 ओवर में। और उनकी इकोनॉमी रही है 9 रन। कह रहे बढ़िया गेंदबाजी, पर इससे साफ जाहिर होता है कि क्या बल्लेबाजी की है कर्नाटका बुलडोजर्स ने। 2 विकेट जरूर गंवाए उन्होंने, पर जो हिसाब से ये रन्स बनाए बिल्कुल काबिले तारीफ। एक बार फिर से अच्छी गेंद थी, लेकिन यहां पे कैच ताब ने, और राहुल जानते हैं बहुत भाग्यशाली थे। फिर से इंद्राशीष, द बॉलर टू सफर। ही हैज बीन अनलकी ऑन अ फ्यू ओकेजन्स टुडे। हम यही कह रहे थे पिछले ओवर में कि काफी नजदीक खड़े रह रहे हैं, हालांकि अभी थोड़े से पीछे खड़े थे, तो फिर भी मेरे हिसाब से काफी नजदीक। 3 बार उछाला और एक आसान सा कैच था। Ultimately it goes in the drop column. सबसे बढ़िया चीज इस छोटे से साझेदारी की रही है अमोल की, बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने कॉशन और अग्रेशन को मिक्स किया। हालांकि पिछली गेंद पे जिस तरीके से चांस दिया था वो थोड़ा आउट ऑफ कैरेक्टर था। उसके अलावा अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स और बीच बीच में जब लूज बॉल्स आए तब उसका भरपूर फायदा उठाया। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। The moment they've given an opportunity, they've latched onto it. Would have been a different picture if Dhruv would have been given out and this catch would have been taken. It would have been 74 for 4. Altogether a different proposition after that.
edged and fallen short of the point fielder. Couldn't put hands to it. He fetched Dhruv another bound. पॉइंट पे जो फील्डर है, अगर ऐसी मिस्टेक उन्होंने की होती स्कूल क्रिकेट में तो जरूर टीचर उन्हें 10 या 12 लैप्स के लिए भेजते। बॉडी को बिल्कुल बॉल के पीछे नहीं रखा। जी हाँ, और हाथ भी नहीं, हाथ को भी नहीं लगा। पर एक अच्छा चौका ध्रुव के लिए और कर्नाटका बुलडोजर्स के लिए। बहुत अच्छे रन रेट के साथ चलती हुई फिलहाल कर्नाटका बुलडोजर्स। आपको बता दें कि फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं www.facebook.com/ccl2020। फिलहाल करंट रन रेट जो चल रहा है वो 10 के ऊपर, यानी इस रेट से अगर चलते रहें तो 200 से ज्यादा आसानी से बन सकते हैं। एक और करारा स्ट्रोक, बिल्कुल सीधा लेकिन अच्छी फील्डिंग। बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर लॉन्ग ऑफ पे। नाइस शॉट, हाथ जैसे निकाल दिया बॉलर ने, इतनी तेजी से गेंद गई। बेहतरीन फील्डिंग लॉन्ग ऑफ पे वहां पर। जाने दिया उस गेंद को। 8 ओवर के बाद 79 पे 2। पिछले मैच में भोजपुरी दबंग्स के खिलाफ 3 विकेट के नुकसान पे 240 रन बनाए थे कर्नाटका बुलडोजर्स में। अमोल अगर विकेट्स हाथ में रखे तो आज भी उसके आसपास बन सकते हैं जरूर। जी हाँ, अगर उस स्कोर तक पहुंच जाएंगे तो क्या बात है। और उनके पास वो बैटिंग है, बहुत बढ़िया बैटिंग है। हमने देखा क्या शुरुआत थी प्रदीप द्वारा। 32 रन बनाए थे प्रदीप ने, सिर्फ 16 गेंदों का सामना किया था। और अभी ध्रुव बैटिंग कर रहे हैं 23 रन बनाकर 12 गेंदों में। नए गेंदबाज सैंडी और उनका स्वागत करते हुए एक फोर्सफुल शॉट के साथ, लेकिन सिर्फ एक ही रन मिलेगा। अब काफी फैला हुआ फील्ड। आपको याद दिला दे कि XXX एनर्जी ड्रिंक CCL पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज में अब तक का एकमात्र शतक मारा था प्रदीप ने, जिन्होंने आज भी 32 रन जरूर बनाए। और उस वक्त उनका बहुत बखूबी साथ निभाया था दर्शन ने। बिग ब्रदर फाउंडेशन आपको जैसे कि बताया जा रहा है डोनेट्स 1000 रुपीज फॉर एवरी रन स्कोर्ड इन CCL 2015। यानी इस टूर्नामेंट में जितने भी रन बनेंगे वो टीम के लिए नहीं, काफी लोगों के लिए भी बहुमूल्य। एक बड़ा शॉट खेलना चाहते थे वहां पर रोक लगा दी लास्ट मिनट पे और सिर्फ 1 रन मिलेंगे। ये अच्छी शुरुआत रही है। पहली बार हम देख रहे हैं स्पिन ने थोड़ा सा काबू कर लिया है रन रेट पे। इस ओवर में फिलहाल 3 गेंदों पे सिर्फ 2 रन। क्या कदमों का इस्तेमाल करेंगे ध्रुव किसी वक्त? अच्छी गेंदबाजी, बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी। काफी कम बार हमने देखा है कि अब
स्पिनर्स 2020 में अच्छे डालते हैं। इस बार जरूर थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल किया था, लेकिन पूरी तरह से गैप नहीं फाइंड कर पाए। हालांकि 3 रन बन चुके हैं। टर्नअप बहुत अच्छा रहा है आज चिन्नस्वामी स्टेडियम में। जानते हैं कि कर्नाटका बुलडोजर्स के पास बेहतरीन मौका है सेमीफाइनल्स के लिए क्वालिफाई करने का, और उससे पहले एक लीग मैच जरूर खेलेंगे तेलुगु वॉरियर्स के साथ, जिसमें पता चल सकता है कि इस ग्रुप के टॉपर्स कौन बनेंगे। यहां एक बहुत करीबी मामला, अंपायर का सिग्नल क्या होगा देखना पड़ेगा, लेकिन 4 रन तो जरूर मिलेंगे। और इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति 86 पे 2। बेंगलुरु के शहर में खेल का बहुत बहुत बड़ा समर्थन है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेली जाती है। फुटबॉल का एक बहुत अच्छा क्लब हाल ही में शुरुआत हुआ है, इजाद हुआ है उसका। और यहाँ पे कर्नाटका बुलडोजर्स के इतने सारे समर्थक क्योंकि आखिरकार XXX एनर्जी ड्रिंक CCL पावर्ड बाय पार्ले 2020 कुकीज में फिल्म और क्रिकेट दोनों का एक बहुत अच्छा समावेश देखने को मिलता है। क्या क्राउड नजर आ रहा है यहाँ पर, खचाखच भरा हुआ है स्टेडियम चिन्नस्वामी। नए गेंदबाज के तौर पे यूसुफ, यानी ऐसा लग रहा है कि कप्तान जिशु ने शायद ये ठान ली है कि स्पिन इज द राइट वे टू गो। एक रन मिलेंगे वहां पर ध्रुव को। यहाँ पर एक बड़ी अहम साझेदारी पनपती हुई ध्रुव और राहुल के बीच। 100 Hearts initiative, Hridaya Cure a Little Heart Foundation. Cure a Little Heart Foundation has saved over 2,000 lives over the last 7 years. It's a great initiative. Helped a lot of people. और इसी बीच इन दोनों बल्लेबाजों ने जरूर जो कर्नाटका बुलडोजर्स के फैन हैं उनके दिलों की धड़कन को थोड़ा सा स्टेडी कर दिया होगा, क्योंकि 52 रन की साझेदारी बन चुकी है। और एक वक्त जब 2 जल्द विकेट गिर गए थे तब ऐसा लग रहा था बंगाल टाइगर्स का शायद पलड़ा फिर से भारी हो जाए, लेकिन उसके बाद अच्छी वापसी। जी हाँ, एक समझदारी से बैटिंग की है, यहाँ पर जिम्मेदारी लेकर बैटिंग की है। जैसे आपने कहा, गैप्स फाइंड करने में काफी माहिर है दोनों ही। You have to, when you're playing a big innings, you have to find those gaps, 1s and 2s, and that's how you build your innings. It's not just about 4s and 6s. In the meantime, it's a full toss, it's hit high up in the air, someone coming underneath, he's caught it! Is that a no ball? It's all action out here at the Chinnaswamy Stadium. कप्तान जिशु ने कैच तो बहुत बेहतरीन पकड़ा है, लेकिन उससे पहले जरूर अंपायर्स ये डिस्कस करेंगे कि ये गेंद जब संपर्क हुआ बल्ले के साथ तब कमर के ऊपर था या नहीं। अगर है तो इसे नो बॉल करार दिया जाएगा, वरना ये तीसरा विकेट।
क्या कहेंगे अमोल? मुझे लगता है ये लीगल डिलीवरी है। जो ट्रैजेक्टरी है गेंद की वो नीचे जा रही है। That's out, and it's a legal delivery, and rightly so. 91 for 3, but it was a terrific catch there by Jishu. Wasn't easy, high up in the air. Rahul has to go back to the pavilion, scoring 25. It's 91 for 3. कर्नाटका बुलडोजर्स को तीसरा झटका मिला है और नए बल्लेबाज आए हैं, लेकिन रनर के साथ आए हैं। थोड़ी सी कंफ्यूजन चल रही है। इसी बीच कमेंट्री बॉक्स में एक परिवर्तन हुआ है। अतुल वासन आए हैं अमोल मुजुमदार की जगह। अतुल, थोड़ी बहुत इस मैच में ऐसा लग रहा है एक टीम का जब पलड़ा भारी हो जाता है तो दूसरी टीम एक वापसी कर देती है। बिल्कुल आपने सही कहा, और होना भी ऐसे ही चाहिए। अगर एक ही तरफ मैच चलता रहेगा तो नीरस हो जाएगा। हालांकि बंगाल टाइगर्स की टीम ऑन पेपर और एक्सपीरियंस के हिसाब से हल्की है। कर्नाटका बुलडोजर्स बड़ी जबरदस्त टीम है, पर बहुत ज्यादा समय ले रहे हैं। एक T20 का एक डेकोरम है, एक प्रोटोकॉल है कि आपको 90 मिनट में 20 ओवर करने हैं। यहाँ पे 100 मिनट का वक्त दिया गया है सभी टीमों को, पर लगता नहीं है कि उनको T20 का अंदाजा है। अंपायर्स भी बहुत लीनियंट है, और ये DRS बार बार जो ले रहे हैं उससे भी मुसीबत है। पर अगर DRS के बावजूद अंपायर्स का दायित्व बनता है कि इसे कंट्रोल किया जाए गेम को, और बोला जाए खिलाड़ियों को कि आप रेडी रहे। अब देखिए इतनी देर बाद भी अब हेलमेट पहने जा रहे हैं, तो ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। जी हाँ, मैच में विलंब कई आए हैं, लेकिन एक बड़ा विकेट मिलता हुआ, और बंगाल टाइगर्स ने पिछले 2 ओवर्स में खासकर स्पिन के जरिए इस मैच में अच्छी एक पकड़ थोड़ी बहुत बना ली है। यूसुफ ने अपने पहले ओवर में 5 रन दिए, लेकिन एक झटका जरूर दे दिया है दूसरी टीम को, और सैंडी ने भी दूसरी ओवर सिर्फ 7 रन दिए थे अपने पहले ओवर में। तो स्पिन के कई सारे ओवर अगर देखने को मिले, शायद रन रेट पे भी नियंत्रण होगा और ओवर रेट में भी इजाफा देखने को मिलेगा। ओह, शायद ऐसे नहीं, इस तरीके से ओवर रेट थोड़ा सा धीमा ही रहेगा। हाथ से फिसली जरूर शायद। उन्हें लगा ऐसी गेंदें जो है वो विकेट लेके दे रही है उनको। दस ओवर के बाद 92 पे 3।